मैं डॉक्टर सुनील वत्स आप सभी का NIOS की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हम इस सेशन में सीखेंगे हाउ वी कैन यूज स्प्रेडशीट। वी कैन आल्सो कॉल इट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एज यू नो, in nowadays in every office or in every department we are using computer as a processing device. For the same, we have the requirement to use different type of software for different purposes. In the same, we have a lot of work when we want to execute or we want to process the data, and the problem begin high when the volume of data is very large. यानी कि डाटा यदि हमारे पास बहुत ज्यादा होता है तो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हाउ वी कैन प्रोसेस दैट डाटा. The second thing is that the problem of processing the data along with accuracy, means how that data will be processed accurately. For the same, in this session we are here with you in the last second about 1.5 hours to discuss various features of Microsoft Excel, which is the part of Microsoft Office. You can also use LibreOffice or OpenOffice instead of Excel. So let's start for the day. In the session, we will discuss all the formatting features of Microsoft Excel one by one, where we also demonstrate all the features like formatting, managing of data, applying formulas, presentation of data in different ways. Let's start for the topic. Here, first of all, we have subject code 229 for class 10th, that is data entry operation, in which we study about the basic feature of MS Excel, set up pages and their printing, modify a worksheet, means how we can modify a worksheet if we have already there, how we can enter and data and edit data in a worksheet. Then we will also discuss different type of shortcut which we can apply in Microsoft Excel sheet, which is also known as worksheet or workbook. Then we have some features how to format the work. Let's start first. What is spreadsheet? A spreadsheet a large sheet having data and information. Means स्प्रेडशीट क्या होती है हमारी? स्प्रेडशीट को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं. ये हमारी एक वो बड़ी शीट होती है जिसके अंदर हम अपने कोई भी डाटा या कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. एज यू नो, एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नाउअडेज. यदि हम आजकल देखें तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये हमारा एक वो एप्लीकेशन है जो यूजर बेस्ड है और मोस्टली वाइडली जो है आपकी यूज की जाती है. इन एवरी ऑफिस दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड. इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. स्प्रेडशीट इज क्वाइट यूजफुल इन एंटरिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा. We can also apply any type of arithmetic operation with numerical data such as addition, subtraction, multiplication and division. It can be done by using Excel. You can also sort your numbers. You can apply formatting on characters, or you can also arrange the data in a given criteria. It may be in ascending or it may be in descending, and you can also use any other financial, mathematical and statistical formulas in Excel. In other word, we can say that Excel is a such type of software in which we can apply any kind of mathematical formula to calculate the result, to get the result in proper format. So let's start with the application. First of all, we have the question how we can open Microsoft Excel.
इनके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप शुरू कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट वे आपके होते हैं, अलग अलग तरीके आपके हो सकते हैं। बेसिकली जैसे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो यहाँ पे मैं जब यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले जैसे मेरा ये सर्च बार है, इस सर्च बार के अंदर मैं सीधा लिख दूंगा आपका एक्सेल। जैसे मैं एक्सेल लिखूंगा तो यहाँ पे एक्सेल मेरा लिखा आएगा। यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल पे क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है मेरा वो ओपन हो जाएगा। जब मेरा एक्सेल यहाँ पे ओपन होगा, एट दैट टाइम इट विल आस्क फ्रॉम द यूजर वेदर ही और शी वांट्स ए ब्लैंक वर्कबुक, मनी इन एक्सेल, welcome to excel, different type of templates are there. We can also get more templates from here, like getting a tour, drop down list, get started with formulas. This template define you about the formulas, how we can get any kind of formula or how we can apply any formula in excel. यदि आप इसमें देखोगे तो नीचे जो हमारी ये वर्कशीट दी हुई है, स्टार्ट है, बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन है, एवरेज है, मीन है, मैक्स है, ये सभी फार्मूलाज यहाँ पे बताए गए हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस फार्मूलाज। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द यूजर इफ ही इज ए न्यू यूजर ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो दिस इज द हेल्प फाइल फॉर द यूजर। सेकेंड, चलिए अब हम यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक्सेल क्या है। एक्सेल हमारी एक वो शीट है जिसके अंदर आप अपना कोई भी डाटा इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली आप उसके अंदर अपना काम कर सकते हो। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास रोज होंगी और आपके पास कॉलम होंगे। यदि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो ये मेरी वो स्क्रीन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। अब यहाँ पे क्योंकि मीनूस आइकन जो है थोड़े छोटे हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये चीज थोड़ी समझ में आ जाए। लेट्स हैव ए क्विक लुक ऑन दिस वन। यदि मैंने अपने कंप्यूटर के आइकन्स को बड़ा करना होता है तो उसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे होता है हमारा डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आप अपना जो आइकन का साइज है उस साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए 150 इसको कर दिया है। जब मैं 150 करूंगा तो मेरा जो आइकन का साइज है वो थोड़ा इनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जिसको आप इजीली देख सकते हो। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे, ये जो मेरा होता है, जैसे मैंने ए को सिलेक्ट किया है तो मेरा पूरा पूरा कॉलम एक सिलेक्ट हो गया है। अब ये मेरा कॉलम होता है और ये जो मेरा 1 2 3 जो लिखे हुए हैं, दीज आर द रो इन विच वी कैन एंटर एनी काइंड ऑफ डाटा। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन 2016 है वो यूज कर रहा हूं आपके लिए, बट इससे पहले जो हम यूज करते थे, और यदि हम आपके सिलेबस की बात करें तो उसमें हमारा मोस्टली हमारा जो ऑफिस एक्सपी है, ऑफिस 2000 है, उसके बारे में बात किया गया है। लेकिन जो हमारे पास न्यूअर वर्जन आए हैं, न्यूअर वर्जन मीन्स आफ्टर 2000, मीन्स वी हैव 2007, 2013, 10, 16, 19, ये हमारे वो वर्जन है जिन्होंने यूजर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड की है। एक्स्ट्रा फैसिलिटी इन द सेंस मीन्स, जैसे यदि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी की, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं, जैसे यहाँ पे अभी रोज मेरी है, वो नंबर ऑफ रोज जो होती थी पहले, वो थी हमारी 65,536, यानी कि 65,536 रो आपके पास अवेलेबल होती थी। लेकिन अब यदि हम बात करें हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 या 2007 के बाद जो भी हमारे ऑफिस आए हैं, उनकी यदि बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी हो गई है 10,48,576, इनके 10,48,576 रो जो है वो आपके पास अवेलेबल है। बट जो हमारा ऑफिस एक्सपी था, जो हमारा ऑफिस 2000 था, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज थी वो आपकी थी 65,536। ऐसे ही यदि हम बात करें नंबर ऑफ रोज की, तो नंबर ऑफ रोज जो मेरी यहाँ पे है वो जो आपका ऑफिस 2000 था आपका या एक्सपी था, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रो होती थी वो होती थी 255 होती थी। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं अब आपकी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए, तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी है, एक सेकेंड मैं जस्ट आपको बता देता हूं सभी के बारे में।
यहाँ पे मेरे पास ये सभी रो है, और यदि मैं रो की बात करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो होती है वो है अब 16,384, 16,000 कॉलम, सॉरी कॉलम हमारे पास जो है वो है 16,384, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके हो गए हैं 16,384, जो हमारे पास पहले होते थे 255। मीन्स अब हमारे पास जो वैरायटी है वो आपकी बहुत ज्यादा एक्सटेंड आपकी हो गई है। अब यहाँ पे हमारे आप देख लीजिएगा कि कितने रोज और कितने कॉलम हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब यदि बात करें हम रो और कॉलम के बारे में, तो ये हमारे कॉलम है और ये हमारे रो है। यदि हम रो और कॉलम को मिला देंगे देन इट इज नोन एज ए टेबल, मीन्स एन इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ ए रो एंड कॉलम। जैसे मैंने अभी एरिया आपको सेलेक्ट कर दिया है, ये एरिया जो आपका है दिस इज कॉल्ड टेबल। यानी कि हमारा रो और कॉलम को यदि हम इंटरेक्ट करेंगे, यदि इनको हम मिलाएंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगी। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं जो इंटरेक्शन पॉइंट, जैसे हमारा यहाँ पे ये ऊपर से रो आया है, कॉलम आया है और ये रो आपका है। जैसे सपोज करो कि ये एरिया मेरा अकेला ये है, यदि मैं इस एरिया की बात करूं तो ये मेरा कहलाता है सेल। और किसी भी सेल का जो आपका एड्रेस होता है उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द सेल एड्रेस। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं नेम बॉक्स के अंदर यहाँ लिखा हुआ है C7। C7 का मतलब है कि C मेरा कॉलम है और 7th मेरी रो है, यानी कि C7 मेरा यहाँ पे आ गया। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 7 के ऊपर, तो मेरा जो पूरा कॉलम जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही यदि मैं किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा जो कॉलम है वो मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक कॉलम सिलेक्ट है मेरा और ये पूरी रो कितनी 10,48,576 मेरी सिलेक्ट हो गई है। अब यदि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी डिजाइन यहाँ से अप्लाई करता हूं तो ये डिजाइन जो मेरा होगा वो सभी की सभी रोज में अप्लाई हो जाएगा, बट जो कॉलम होगा कॉलम मेरा सिंगल होगा। अब ये आप यदि देखोगे तो हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो पूरी रो के ऊपर अप्लाई हो गया है। चलिए अब हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उससे हम कंसर्न थोड़ा करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारा है, हमने देख लिया अभी हम क्या क्या इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है फॉर्मूलाज वी कैन अप्लाई। और फॉर्मूला में हमारा सबसे पहले क्या है, वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ फीचर्स विच a spreadsheet provide to the user. Here we have auto sum, list autofill, auto shape, wizard, drag and drop, chart, pivot table and shortcut menu. Means we can apply such type of thing. Auto sum क्या है, auto fill क्या है, वो मैं अभी आपको वन बाय वन जो है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसी के अंदर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, अब इन्होंने कहा कि जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि मेरे यहाँ पे इस सेल के अंदर डाटा है, इस डाटा को मेरा जो अभी A4 और 5 में था इसको मैंने उठा के J वाले कॉलम में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल जाऊंगा और इसके ऊपर इसको ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग करके जहां भी मेरे को रखना है वहां मैं इसको ड्रैग करूंगा। अब ये देखोगे कि जो डाटा मेरा यहाँ पे था, यहां से डाटा मेरा हट गया है और डाटा मेरा यहां पे आ गया है। मीन्स ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने यहां से अपने डाटा को ड्रैग किया और जहां मेरे को चाहिए था वहां पे मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब ऑटो सम का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली किसी भी वैल्यू का सम आप कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सम करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन आप लगाओगे, उसके बाद आप जो भी लिखोगे तो हमारा एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा इक्वल टू सम, इसके बाद मैं ब्रैकेट अपनी स्टार्ट कर दूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस सेल का आपने सम करना है, सपोज करिए कि मैं इस सेल को आपका सम करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, सीधा क्लिक करोगे तो हमारा यहाँ पे लिखा आया है I5। यदि आप वहां पे क्लिक नहीं करते हैं तो आप सिंपल लिख दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो सेल है मेरे, इसका जो कॉलम है वो है मेरा 5 और मेरा जो रो है वो है 5। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा कि I5 से लेके मेरे को कहां तक का सम करना है। सपोज करिए कि मेरे को I5 से लेके I6 तक का सम करना है, तो कॉलन के बाद मैं लिख दूंगा I6। इसके बाद जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया था
उस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूं और एंटर प्रेस में करूंगा। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा सम यहाँ पे आ गया है। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है किसके अंदर, I7 के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को J की जो वैल्यू है यानी J5 और J6 है उनका भी मेरे को सम लेना है। तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, जो मेरी ये सेल है मैं थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेता हूं ताकि आपको वो चीज दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए, यदि मैंने इसी फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला आई वांट टू अप्लाई इन द नेक्स्ट सेल, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे जाके हमारा सिंबल चेंज हो गया है। आज इसको लो, अपने माउस को लेफ्ट क्लिक को दबाओ और ड्रैग कर दो। जैसे आप ड्रैग करोगे तो नेक्स्ट सेल का जो आपका फॉर्मूला है वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। इसके बाद एक है हमारा ऑटो फिल। ऑटो फिल का मतलब है कि हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल यहाँ पे होगी। उसके लिए क्या है, मान लो मैंने यहाँ चाहता हूँ कि मेरे को 1 से लेके और 100 तक की जो काउंटिंग है वो मेरे को यहाँ पे लिखनी है। तो सिर्फ मेरे को क्या करना है, 1 लिखा, इसके बाद मैंने 2, इनकी 2 वैल्यू मैंने लिख ली। इसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और ये जो हमारा इंटरेक्टिंग पॉइंट है रो और कॉलम का, राइट साइड बॉटम में जो हमारा ये इंटरेक्शन पॉइंट है, इसके ऊपर जाके मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के और ड्रैग कर दूंगा। जब भी मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ संख्या दिखा रहा है 42 तक मेरा आ गया है। तो आप कहीं तक भी इसको ड्रैग करते जाइए, जहां तक ड्रैग करेंगे वहां तक की वैल्यू हमारी आ जाएगी। पहली चीज। दूसरी ये है कि मेरे को जो नंबर है वो अभी 1 2 3 4 आया है, मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ काउंटिंग जो है वो चाहिए थी 2 4 6 8 10। तो मैं यहाँ पे पहली में वैल्यू 2, अगली में 4, यानी कि 2 का गैप मैंने रखा है। तो अब मैं ड्रैग करूंगा तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 2 2 का गैप लेके आएगी। ये देखिए 2 4 6 8 10 12। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू अपनी अरेंज कर सकते हो। मीन्स 3 6 मैंने कर दिया, यानी कि मैं 3 की टेबल यहाँ पे कर रहा हूं, तो उसको आप ड्रैग करोगे तो वो 3 की टेबल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स आप कोई भी वैल्यू को आप अपना ड्रैग कर सकते हो। दूसरा आपका यहाँ पे है कि जैसे हमारा टेक्स्ट है, एक्सेल के अंदर जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो सबसे जरूरी होता है अपने डाटा को मैनेज करना या अपने डाटा को आपने फॉर्मेट करना। क्योंकि जब तक आपकी शीट के अंदर डाटा आपका फॉर्मेट नहीं होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होगा, तो जो डाटा का हमारा आउटलुक है वो आपका प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन सभी ऑप्शंस को करेंगे। और यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं, जहां हमारा बी है, आई है, यू है, ये सब जो हमारे लिखे हुए मेनूज, जो हमारी पिक्चर्स यहाँ पे है, दीज आर नोन एज शॉर्टकट। ये हमारे सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिसके साथ हम अपनी शीट के ऊपर एक गेम जो है वो अपना प्ले कर सकते हैं। यानी कि एक अपने आप में एक ये खेल है कि आप अपनी शीट के अंदर कैसे इंटरेस्टिंगली काम करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हमारा है कि जैसे मेरे पास ये डाटा है, ये डाटा मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा डी कॉलम है, डी कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ है वो हमारा पूरा डिस्प्ले नहीं है, सारा डिस्प्ले नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये हमारा जो कॉलम है, इस कॉलम की विड्थ इतनी हो जाए कि ये डाटा हमें सारा दिखाई दे। तो उसके हमारे 2 तरीके हैं। एक तो हमारा ये है कि आप यहां से सीधा जो ये इंटरेक्टिंग पॉइंट है डी और ई का, उसके ऊपर जाओगे, अपने माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के उसको आप ड्रैग कर दोगे इस तरह से, जहां तक हमारा वो टेक्स्ट नहीं आता। दूसरा तरीका हमारा ये है कि जैसे मान लो इसको मैंने यहां तक रखा, तो हमें थोड़ा इश्यू आया कि 2-3 बार हमने इसको करना पड़ा। लेकिन आप चाहते हो कि सिंगल टाइम मैं क्लिक करूं और सिंगल टाइम क्लिक करते ही मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, जो डी और ई का इंटरेक्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर सिर्फ डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही मेरा जो कॉलम है वो अपना ऑटो फिट वहां पे हो जाएगा। यानी कि डाटा हमारा जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी हो जाएगी जिसमें हमारा डाटा आ सकता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो डाटा है, यहाँ पे आपके सिर्फ हैश आपको दिखाई दे रहे हैं। हैश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डाटा है उसकी लेंथ ज्यादा है और हमारा जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है। अब विड्थ को हमारा डाटा के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए वही आप फिर करेंगे कि आप जैसे जी और एच कॉलम यहाँ पे है, इसके इंटरेक्टिंग पॉइंट पे जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। मीन्स इसको बोलते हैं हम ऑटो सेट, ऑटो फिट भी आप इसको कह सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो डाटा है वो आपका ऑटोमेटिकली फिट हो गया है। अब यहाँ पे कहोगे सर ये तो देखो
यहाँ पे हमारी सही ये जगह रहेगी है, काफी स्पेस खाली है हमारा, लेकिन यदि आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है इसी कॉलम के अंदर कुछ डाटा ऐसा था जो बड़ा था, जिसकी वजह से उस कॉलम की जो विड्थ है वो आपकी सेट करनी पड़ी। ठीक है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट मूव में हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ चार्ट के बारे में। चार्ट हमारा क्या होता है? चार्ट हमारी एक ग्राफिकल फीचर होता है जिसमें हम अपने डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक रो आपकी ऊपर ले ली है, इंसर्ट कर लिया है, जिसमें मैं अपने हेडिंग डालूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा आपका, सबसे पहले लिख दिया रीजन, यहां मैंने लिखा आपका स्टेट, यहां लिखा मैंने आपका डिस्ट्रिक्ट, बता दो, मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्टिविटी, यहां पे मैंने लिखा आपका ईयर, यहां पे मैंने लिखा है आपका मंथ, ये हमारा डेट है, डेट फ्रॉम, डेट टू, यहां पे हमारा है टाइप ऑफ एक्टिविटी, यहां पे मैंने आपका लिख दिया कोई भी मान लो टाइप। तो अब मैं इस डाटा का फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस डाटा को पहले सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने इंसर्ट के ऊपर जाऊंगा और यहां से आपके पास डिफरेंट टाइप के जो चार्ट है वो आपके दिए हुए हैं, किसी भी चार्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। जब डाटा को आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो डाटा है वो आपका डिफरेंट वे में आपका आ जाएगा। ये सभी फीचर्स हम करेंगे वन बाय वन, लेकिन अभी हमारे पास डाटा जो है वो हमने सिर्फ फीचर बताने हैं, तो वन बाय वन हम इसको चलेंगे। उससे पहले मैं अगले जो है उसमें हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आया है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, मीन्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हमें कौन सी फीचर प्रोवाइड करता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2013 और 2016। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो ऑफिस थे उसमें हमारा एक तो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP जो हमारा मोस्ट पॉपुलर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP या 2000 की बात करें या इन दोनों वर्जन को हम कंपेयर करें हमारे लेटेस्ट वर्जन के अंदर, तो बहुत सारे फीचर हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। वो कौन कौन से फीचर है? इसमें सबसे पहला फीचर तो जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है उनकी संख्या हमारी बढ़ गई है, और उनकी जो लिमिट है अब वो हमारी अदर न्यू लिमिट आपकी आ गई है। जैसे हमारे पास पहले जो नंबर ऑफ रोज थे वो मैंने बताया आपको कि 65,536 थे, जो कि अब हमारे लगभग 10,46,000 के आसपास जो है वो हो गई है। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे हमारे 255 थे, जो कि अब हमारे पास लगभग 16,800 के आसपास जो कॉलम आपके हो गए हैं। तो इसके बाद हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर, ये आप जानते हैं सभी कि एक्सेल हमारा एक वो मैथमेटिकल पैकेज है जिसके अंदर आप इजीली अपने डाटा को मैथमेटिकल वे में अरेंज कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। इट आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स विच वी कैन अप्लाई ऑन आवर शीट। इट आल्सो प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेल स्टाइल। एक्सेल स्टाइल्स में यदि हम जाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपकी इस शीट के अंदर बहुत सारे यानी डिफरेंट टाइप की आपकी जो स्टाइल है वो आपके हैं, वो मैं वन बाय वन आपको करवा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा होम टैब होता है, और होम टैब में यदि आप जाओगे तो यहाँ हमारे पास है फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप की जो टेबल्स है वो हमारे पास है, जिसके अंदर से फॉर्मेट जो है आपकी टेबल का ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके अंदर आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, बट these are just like the templates which we can apply on data. Second, अब यहाँ पे ऐसे ही हम बात करेंगे तो हमारे डिफरेंट फीचर जो हमारे सारे आएंगे, लेकिन इन फीचर्स को हम वन बाय वन करेंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे हमारे इन रिबन्स को। इसको बोलते हैं हम रिबन, जहाँ पे हमारे सभी टूलबार जो है आपके दिए गए हैं एज ए शॉर्टकट। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वी कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि हम कोई भी फॉर्मेटिंग जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर होगी वो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे डाटा है,
मैं चाहता हूं कि इस डाटा के अंदर से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कोहिमा है, सपोज करिए कि कोहिमा जो मेरा है, उन सभी को मैंने हाईलाइट करना है। तो मैं यहां से आपका सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद हमारा आप जाओगे, जब होम में जाओगे तो यहाँ पे होता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आप जाइए, यदि आप देखोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारा हाईलाइटिंग सेल रूल है, वी हैव टॉप बॉटम रूल है, वी हैव आल्सो डाटा बार, वी हैव कलर स्केल, वी हैव आइकन सेट, न्यू रूल वी कैन आल्सो अप्लाई, we can also any existing rules which is there, we can also manage the rules। अब यदि हम बात करें तो हाईलाइट सेल रूल में आप जाओगे तो जैसे हमारे यहाँ पे है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब मैं चाहता हूं कि जहां पे मेरा टेक्स्ट कोहिमा है उनको आपका हाईलाइट कर दे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूंगा टेक्स्ट दैट कंटेन। मैंने यहाँ पे गया और मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करो कि लिखा कोहिमा, हिमा, और यहां पे जाके मैंने वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी कि जहां पे भी मेरा कोहिमा लिखा हुआ है वहीं पे उसका कलर जो है वो आपका ग्रीन कर दे। मैंने ओके कर दिया। तो जैसे आप यहां पे देखोगे तो जहां जहां पे भी मेरी शीट के अंदर कोहिमा लिखा हुआ है वो सारा का सारा कलर जो है हमारा वो कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है। मैं चाहता हूं कि जहां नागपुर लिखा हुआ है उसका कलर रेड हो जाए, तो फिर मैं यहीं पे जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल में जाऊंगा, यहां पे मैं करूंगा फिर टेक्स्ट दैट कंटेन नागपुर, और मैंने यहां पे कर दिया अभी नागपुर जहां पे है उसका कलर जो है वो फिल कर दे कैसा, रेड। मैंने यहां पे किया और ओके कर दिया। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो जहां पे मेरा कोहिमा था उसका कलर मेरा ग्रीन हुआ है, जहां पे नागपुर था उसका कलर मेरा रेड हो गया है। मींस वी कैन अप्लाई सच टाइप ऑफ थिंग। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे है कि मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो जून की एक्टिविटी है, जून मंथ की जो एक्टिविटी है सिर्फ वो हाईलाइट करनी है, तो मैं यहाँ से वो इजिली आपका कर सकता हूं। जैसे मैंने बताया आपको, आपने करना क्या है, सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे, यहां से हाईलाइट सेल रूल करोगे और इसके अंदर जाके कर दोगे टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके बाद हमारा है ए डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग का मतलब है कि ये डेट हमारी आ रही है। सपोज करो कि ये कॉलम मैंने लिया और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाके मैं यहाँ पे गया, मैंने कर दिया ए डेट ऑकरिंग। कोई भी डेट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, भाई येस्टरडे की है, टुडे की है, टुमारो की है, इन द लास्ट डे है, या लास्ट वीक है, या दिस वीक है। मैं कोई भी डेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मान लो मैंने लास्ट मंथ कर दिया, अब लास्ट मंथ मैंने कर दिया है, तो जैसे ही यहाँ से आप कोई भी अपने अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला रूल है कि जो लास्ट मंथ की सेल है जिसमें ये डेट हमारी ओकर हो रही है, क्या करें, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, लाइट रेड फिल रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट के अंदर आप फॉर्मेटिंग अपनी मर्जी से अप्लाई करोगे और वो हमारी कुछ वो फॉर्मेटिंग है जो आपकी ऑलरेडी अप्लाई हुई है। आप चाहते हो कि जो यहाँ पे हमारा लास्ट मंथ की डेट आए उनको बोल्ड कर दे, तो आप यहाँ पे जाके सीधा उसको बोल्ड कर दोगे और उसका जो कलर आपने देना है, सपोज करिए कि आप चाहते हो कि उसका कलर ब्लू हो जाए, आप क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डेट हमारी थी उस डेट का कलर जो है आपका, जैसे यहाँ पे ये था, ये 26/6 है, 17/6 है, मतलब जहां पे भी 6 मंथ आपका आया है वो सभी जो डेट है वो आपकी अलग से कलर में आपकी आ गई है। मींस वी कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग। चलिए अब इसके बाद मैं थोड़ा डाटा आपका यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और डाटा क्या है आपका वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए इस फॉर्मेटिंग को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नो फिल मैंने कर दिया, और जो बॉर्डर है वो भी मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मेरे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा कि एक डाटा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैंने लिखा यहाँ पे कि सीरियल नंबर है मेरे पास, नेम ऑफ स्टूडेंट है और उसके मार्क्स है। इसके बाद मार्क्स में मान लो मैंने 2 सब्जेक्ट आपका ले लिया, एक आपका ले लिया मान लो आपका फिजिक्स है और एक मान लो आपका है मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैंने उनका टोटल निकालना है और यहाँ पे मैंने उसकी परसेंटेज निकालनी है।
तो मैं सिर्फ सिंपल करूंगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, मान लो आपका नाम है बच्चे का राजेश, 2 यहाँ पे मैंने ले लिया दिनेश, 3 यहाँ पे ले लिया मैंने मनोज। यहाँ पे मेरे को नंबर डालने हैं बच्चों के, मैंने नंबर डाल दिए। हमारे मैं टीचर थोड़े ही ज्यादा एक्सपर्ट है इसलिए मैं नंबर ज्यादा डाल रहा हूँ, डर लगता है मेरे को। चलिए अब यहाँ पे जो नंबर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया होता है कि फॉर्मेटिंग आपने करनी है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो हमारा आधा कॉलम आपका हाईलाइट है, और सॉरी आधा हमें दिखाई दे रहा है, पूरा टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है दोनों कॉलम का, वहां पे जाके डबल क्लिक कर दो, पहला। दूसरी बात, आप चाहते हो कि ये ऐसा करने से हमारी जो कॉलम की विड्थ है वो ज्यादा हो जा रही है, तो आप क्या करोगे, इसको वहीं पे रखोगे विड्थ को, और यहां पे क्लिक करके ऊपर जब आप जाओगे तो यहां हमारा रिबन बार के अंदर लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टेक्स्ट है उस कॉलम का वो आपका 2 लाइन में आ गया है, जो आपके लिए कॉलम की विड्थ भी ज्यादा नहीं हुई है और आपका पूरा टेक्स्ट भी वहां पे डिस्प्ले हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट का अलाइन है वो अभी बॉटम में है। अब यदि इस टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो आपने सेंटर करना है, तो आप इस कॉलम को, सॉरी इस रो को सिलेक्ट करोगे और यहां से जाके आप सेंटर कर दोगे। सेंटर का मतलब है कि ये मेरा जो वर्टिकल है वो मेरा सेंटर होगा, न कि मेरा हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल यदि आपने सेंटर करना है तो आप यहाँ पे जो नीचे वाला बार है हमारा, जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो उससे हमारा वो सेंटर हो जाएगा। अब यदि नंबर्स को भी आपने सेंटर करना है तो सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाके आप उसको सेंटर कर सकते हो। इसके बाद आपने टोटल निकालना है। मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन अप्लाई एनी फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, यू जस्ट पुट इक्वल साइन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला आपका इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पे सम करना है तो मैं लिखा सम, इसका सम करना है या तो आप यहां से लेके यहां तक ड्रैग कर दो सीधा, यहां पे हमारा एड्रेस अपने आप आ जाएगा C2 से D2। C2 से D2 का मतलब है कि C हमारी ये सेल है और इसका सेकंड है C2 से लेके D2। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया। यदि आप ब्रैकेट बंद भी नहीं करते हैं तो जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है वो इतना स्मार्ट है कि वो आपसे अपने आप पूछ लेगा, या वो ऑटोमेटिकली अपना फार्मूला जो है वो बंद कर देगा, जैसे यहाँ पे अपना ऑटोमेटिकली बंद कर दिया है। चलिए, इसके बाद परसेंटेज हमें निकालनी है। अब मान लो मैंने मान लिया कि दोनों सब्जेक्ट मेरे 100 मार्क्स के थे, तो मैं इसको सिर्फ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो फॉर्मूला है, जो मेरा परसेंटेज है, वो मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे मेरा मैंने लिया है E2 से लेके, E2 को डिवाइड किया है F2 से, इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय 2 मैंने लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये मेरा परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ गया है। अब हमारा एक बच्चे का निकल के आ गया राजेश का। यदि आप चाहते हो कि नीचे वाले दोनों बच्चों को भी मेरे को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 2 मेथड है बेटा आपके। एक तो ये है कि आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके जो हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपका राइट बॉटम है, वहां पे जब डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेके डबल क्लिक करता हूं तो दोनों का अपने आप आ गया। दूसरा हमारा यहाँ पे है कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसको आप नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आपका अप्लाई होके आ जाएगा। अब इसके ऊपर यदि आप देख पा रहे हैं कि जो टेबल है मेरी, इसका फॉर्मेटिंग आपकी नहीं है। आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग इसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। जो फॉर्मेट है, हम सिर्फ जो फॉर्मेट चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और वो फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आ जाए। तो आप इस डाटा को करो सिलेक्ट। यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया है, इसके तुरंत बाद आपका है फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फॉर्मेट है वो आपके दिए हुए हैं। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप सिर्फ उस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दो। वो क्लिक करते ही ये पूछेगा आपसे सेल रेंज। सेल रेंज जैसे A1 से लेके F4 आपका लिखा हुआ है। A1 टू F4 का मतलब है कि यहां से शुरू करके और यहां तक की सेल को हमारा फॉर्मेट करेगा, और जो टेबल हेडर है वो उसकी बनाएगा। ओके मैंने कर दिया, तो ये फॉर्मेट मेरा आप यहाँ पे
अप्लाई हो गया है। अब यहीं पे, अब क्योंकि टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि जो मेरा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा सकूं। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है कि जो मेरा होम है इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही आपके कई सारी है, जैसे मान लो यहाँ पे है ग्रेटर देन पे आपने कुछ ऐसा डाटा देखना है जिसमें कोई कंडीशन है, या हमारा लेस देन है, या आपका बिटवीन है, इक्वल टू है, दैट कंटेन है। अब सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे को उन बच्चों के नाम दिखा दे जिनके फिजिक्स में 85 से नंबर कम है, उनको हाईलाइट कर दे। तो मैं यहाँ पे गया, हाईलाइट सेल रूल में जाके मैंने कर दिया लेस देन। क्या लेस देन? मैंने किया आपका 86 से डाउन कर दिया भाई, 86 से कम जिसके भी नंबर है उनको आपका क्या करे, एक कलर दे दे येलो। तो मैंने यहाँ पे आपका कलर जो है वो चूज कर दिया येलो और ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा डाटा था यहाँ पे वो येलो कलर आपका हो गया है। तो ये हम या जो है आपका इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो हमारे जो बच्चे जिनके मार्क्स 86 से कम थे वो आपके हाईलाइट हो गए हैं। इसके साथ साथ ही हमें कोई और फॉर्मेटिंग करनी है, मान लो ये फॉर्मेटिंग हटानी है, तो हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ से करें क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल में हमारे पास है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, और क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल। अब मैंने कर दिया क्लियर रूल कर लिया सिलेक्टेड सेल के ऊपर से, तो मेरा जो फॉर्मूला था, जो कंडीशन थी, वो यहाँ पे हट गई। अब यहाँ पे मान लो इसी डाटा को मैं यहीं पे आपका ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जैसे डाटा बार है, डाटा बार में आप कोई भी कंडीशन वो अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे डिफरेंट टाइप के डाटा बार्स है, जैसे यहाँ पे आ जाए। अब यदि यहाँ पे देखोगे, सपोज करिए कि यहाँ तक का ये हमारा आया हुआ है, यहाँ पे मैंने नंबर कर दिए आपके 42, तो देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा चार्ट है, वो हमारा बार बिल्कुल नीचे पीछे चला गया है। यदि मैं यहाँ पे 10 नंबर करता हूँ तो ये और भी पीछे आ जाएगा। यदि यहाँ पे मैं मार्क्स कर देता हूँ 100, तो आप देखेंगे तो ये ग्राफ मेरा पूरा भर जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारा ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डाटा की आ जाएगी। इसको हम डिफरेंट वे में आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे हमारे डाटा बार है, इसके बाद हमारे आइकन सेट है, आइकन सेट में डिफरेंट टाइप के दिए हुए हैं, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप देखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जब नेटवर्क थोड़ा कम होता है तो जो हमारे बार हैं वो कम आते हैं, और जब हमारे नेटवर्क अच्छा आ जाता है आपके मोबाइल के अंदर, तो वो वहाँ पे जो सिग्नल क्वालिटी है, वो जो हमारे सिग्नल के जो आपके बार होते हैं वो आपके फुल आ जाते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे है, तो मैंने देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, जब मेरा डाटा यहाँ पे आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो डाटा हमें दिखा देगा। इसके लिए मैं सिर्फ इन 2 सेल को ले रहा हूँ, अगली सेल को नहीं ले रहा, इसको मैं हटा रहा हूँ दोनों को। उससे क्या फर्क होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए आप यहाँ पे जब देख पा रहे हैं कि जहां 100 था वहां पे हमारी सेल पूरी भर गई है, जहां 94 है वहां पे भी लगभग भरी हुई है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 45, तो आप देखेंगे कि नेटवर्क का जो रेंज है वो मेरे 3 डंडे खत्म हो गए, 1 रह गया है। कारण क्या हुआ कि इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 100 मान ली गई है, लेकिन जब हमने इस सेल को साथ में लिया हुआ था तो इसके अंदर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारी 200 मानी गई थी। अब 200 मानी थी तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो 100 आने के बावजूद भी हाफ जो है लाइन वो बार से भरी थी। चलिए अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद है इजी फॉर्मूला राइटिंग, वो मैंने राइटिंग करके आपको दिखा दी है कि हम किस तरीके से हमारे डाटा को, फॉर्मूला को राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा हाउ वी कैन इंप्रूव सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज द डाटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इट मे बी इन असेंडिंग और इट मे बी इन डिसेंडिंग। यानी कि आपने अपने डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में मैनेज करना है, अरेंज करना है, तो हम यूज करेंगे हमारा सॉर्टिंग मेथड। दूसरा हमारा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि जो डाटा आपके पास है उस डाटा के अंदर से हमने कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही हमने देखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको शीट के अंदर लेके जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं आपके, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है।
मैं चाहता हूं कि इस डाटा को ये अरेंज कर दे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आए, भाई जिसके नंबर कम है वो पहले आ जाए, जिसके नंबर उससे ज्यादा है वो बाद में आए, उसके बाद में अगला बच्चा आए। तो मैं इसको पहले आपका सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ लिखा हुआ है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कस्टम सॉर्ट। यहाँ से आप कर सकते हो। कस्टम सॉर्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है हमारा ऐड लेवल। ऐड लेवल का मतलब होता है आपने अपने डाटा को जो सॉर्ट करना है उसके लिए आपने मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है। आपने अप्लाई करनी है भाई जिसके फिजिक्स में नंबर कम है और मैथ में ज्यादा है, तो हमारे पास 2 लेवल हो जाएंगे। यदि हमारे पास एट्रीब्यूट 3 है, 3 के ऊपर अप्लाई करना है तो हमारे लेवल 3 हम कर लेंगे। कैसे करेंगे वो, जैसे अभी एक लेवल मेरा है, इसके बाद लेवल 2, लेवल 3, ऐसे आप लेवल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यदि कम करने हैं आपको लेवल तो यहाँ पे जाके आप डिलीट लेवल कर दो, लेवल डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सॉर्ट बाई किया तो मेरा जो ये कॉलम है, इस कॉलम का जो नाम है वो आपका है फिजिक्स। तो जब सॉर्ट बाई में आप जाओगे तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा मिलेगा आपको। ये देखिए कई बार यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं आता, आपका कॉलम A1 2 3 4 आ जाता है। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी, क्योंकि मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे माई डाटा एज हैज हेडर। तो फिर आपकी जो फर्स्ट रो होगी उसको ये एज ए हेडर काउंट करेगा। आप यहाँ पे जाओगे सॉर्ट बाई में, यहाँ पे फिजिक्स मैंने किया। अब ये पूछ रहा कि मैंने जो ऑर्डर देना है वो कैसे देना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मैंने देना है मान लो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके ऊपर देना है जो मेरी सेल की अंदर वैल्यू है। यहाँ आप ये सॉर्टिंग सेल वैल्यू पे कर सकते हो, उसके कलर पे कर सकते हो, फॉन्ट कलर पे कर सकते हो, या हमारा कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आपने आइकन की दी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे अपने बार लगाए हुए हैं तो उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू पे सिलेक्ट करी और ओके कर दिया। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डाटा है वो मेरा अरेंज हो गया है, यानी कि पहला मेरे पास डाटा जो आया है वो दिनेश का आया है, फिर मनोज का आया है, और उसके बाद आपका राजेश का आया है, और फिर मेरा मनोज का आया है। अब यही फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूंगा अपने फिल्टर के ऊपर और यहाँ से कर दूंगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा तो मेरा पहले स्मॉल नंबर, फिर मेरा कैपिटल लार्ज नंबर, फिर मेरा लार्जेस्ट। यहाँ से मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकता हूँ। क्लिक करिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे। ये आप तभी कर सकते हो यदि आपने फिल्टर अप्लाई किया हुआ। यहाँ पे मेरा फिल्टर अप्लाई है। अब फिल्टर अप्लाई कैसे होगा, फिल्टर हटेगा कैसे, आप क्लिक करो। यदि आपने फिल्टर हटाना है यहाँ का तो आप यहाँ से जो डाटा मेनू है उस पर चले जाओ, वहां से भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपका सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर फिल्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर दो तो ये फिल्टर आपका हट जाएगा। यदि आपने फिल्टर दोबारा अप्लाई करना है, फिल्टर क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि हमने फिल्टर भी अप्लाई करना है। फिल्टर का मतलब है कि मैंने डाटा को, ये अभी मैं जो देख पा रहा हूँ मेरा डाटा पूरा मेरे को दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरे को डाटा जो दिखाई दे रहा है वो मेरे को राजेश का भी दिखाई दे रहा है, दिनेश का भी और मनोज का भी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिनेश का डाटा देखना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो हेडर रो है उसके ऊपर जाऊंगा, उसको सेलेक्ट करूंगा, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरा फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपने फिल्टर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे तीनों पे सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट ऑल हटा दो पहले तो। अब यहाँ पे देखो कि मैंने चाहिए सिर्फ दिनेश का डाटा, तो मैं दिनेश पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को डाटा सिर्फ दिनेश का दिखाई देगा, बाकी दोनों डाटा मेरे हाइड हो जाएंगे। चलिए, ये हमारे पास डाटा कम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास डाटा बहुत ज्यादा होता है और उस डाटा के अंदर से आपको समझ नहीं आता कि आपको डाटा किसका चाहिए। तो आपकी लिस्ट में भी वो लंबे तक जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो सर्च बॉक्स है उसके अंदर आप लिख दोगे, जो आप लिखोगे, मान लो मैंने राजेश लिखा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली राजेश के ऊपर अपना फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। आप सिर्फ ओके कर दोगे तो वो भी हमारा फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर, आगे हम चलते हैं। और आगे जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा है, ये मैंने आपको बता दिया, हाउ वी कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए
अब यहाँ पे आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो, कि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया तो उसके हमारे कौन कौन से पार्ट आपके होते हैं। तो मैं इन सभी पार्ट्स को आपका 1 बाय 1 जो है वो बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा सबसे पहले एक्सेल खुला हुआ है। अब इस एक्सेल के अंदर यदि आप देखोगे, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, ये बटन से आपके बने हुए हैं, ये वाले यहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा सा एक बार मैं अपना पेन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यस, अब देखो, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये टूल बार है, ये वाला, ये होता है मेरा ऑफिस बटन। ऊपर जहां हमारा लिखा हुआ है सेव का बटन है, अंडू का है, रीडू का है, इनको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यदि आप आगे मूव करोगे तो आपका लिखा होता है, जब आप किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा हमारा बुक 1। बाय डिफॉल्ट हमारा जो नाम है वो बुक 1 होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये हमारा कहलाता है टाइटल बार, जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है। जब आप अपनी फाइल को सेव कर दोगे तो यहाँ पे उस फाइल का नाम आ जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वहाँ पे लिखा होगा। इसके बाद हम थोड़ा नीचे मूव करें, ये वाला बार जहाँ ये खाली से आपको दिखाई दे रहा है FX ये लिखा हुआ है, FX के आगे ये जो पूरा पूरा बार है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। जब भी आप कोई फॉर्मूला अपना राइट डाउन करोगे तो हमारा इस बार में वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे आपका सेल का एड्रेस आपको दिखाई देता है वो आपका होता है नेम बॉक्स। इसके बाद नीचे आपके जाओगे, जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में लेके जा रहा हूँ और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेरा बार है, ये वाला जहां लिखा हुआ है A3। A3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मेरा जो कर्सर है अब वो A3 के अंदर है। अब मैंने मान लो यहाँ पे अपना कर्सर रखा, अब कर्सर मैंने लिख रखा है H कॉलम में और H कॉलम का रो है मेरा 11। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो H11 मेरा यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मान लो मैंने लिखा दिया है कि कोई फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो मैंने कर दिया कि सम मैंने लिखा और सम में मैंने कर दिया यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये फॉर्मूला जो है, जहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे दो बटन यहाँ पे आए हैं, एक तो हमारा क्रॉस का है, एक हमारा यहाँ पे राइट का है। अब क्रॉस का मतलब है कैंसिल करना और राइट का मतलब है एंटर कर दिया, मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड दिस फॉर्मूला। मैंने हटा दिया इसको। FX से आप अपने फॉर्मूला, यदि आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से अपने जो फॉर्मूला है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हो। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके आए हुए हैं ये वो फार्मूलाज है जो मोस्टली यूज होते हैं। आप चाहते हो कि मेरे को सारे फार्मूले चाहिए हैं तो आप यहाँ जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑल। जैसे ही आप ऑल करोगे तो सारे फॉर्मूले मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। एक्सेल के अंदर सारे वो फार्मूले हैं जो आप किसी न किसी पर्पज के लिए यूज करते हो। मान लो आपको जो काम है, मैं एक्सेल में आप काम कर रहे हो, बट आपको वहां पे कुछ साइंटिफिक फार्मूले हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है, तो वो कैसे करोगे? इसके लिए यहाँ जहां मैंने ऑल किया है यहाँ पे मैं जाऊंगा और जो मेरे को फार्मूले चाहिए है, ये देखो यहाँ पे हमारे सारे डिफरेंट टाइप के फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हमारे इंजीनियरिंग के है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन के है, लॉजिकल के है, टेक्स्ट के है, डाटाबेस के है, लुकअप एंड रेफरेंस के है, स्टैटिकल है, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के है, डे टाइम के हैं, फाइनेंशियल के हैं। जब आप फाइनेंशियल पे क्लिक करोगे तो आपको फाइनेंस से कंसर्न जितने भी आपके फार्मूले होते हैं वो आपके यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। यदि मान लो आपको फार्मूला नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे इस सर्च बॉक्स के अंदर भी फार्मूला लिख सकते हो। मान लो मैंने डाल दिया वी लुक अप, ये मेरा फार्मूला है, तो यहाँ से जैसे एंटर करूंगा तो मेरा जो फार्मूला है वो आपको आ जाएगा और फिर नीचे उसकी हेल्प भी आपको दिखाई देगी, भाई हाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी आपको ये दिखाएगा। चलिए, इसके बाद ये होता है हमारा वो टूल बार जहां से हम अपनी पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए तो हमारी रो और कॉलम यानी कि पूरी जो वर्कशीट है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ ये जो होता है हमारा ABCDEF जो लिखा हुआ है ये होता है आपका कॉलम हेडर, जहां पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है आपका रो हेडर। यहाँ जो आप दिखाई दे रहा है शीट 1 शीट 2 ये हमारे नेम ऑफ वर्कशीट होते हैं।
यदि हम इनको पूरी को बोलें, पूरी हमारी होती है वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर होती है हमारी नंबर ऑफ शीट्स। इसके बाद आपने मान लो शीट 1 है, शीट 2 है, आपको शीट 3 की जरूरत यहाँ पे है, तो आप सीधा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो शीट 3 है वो आपकी इंसर्ट हो गई है। ऐसे ही आप अपनी जो शीट है इसको आप कितनी भी शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आप अपनी शीट को डिलीट भी कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर देखोगे आपका लिखा हुआ है डिलीट, क्लिक कर दो तो आपकी वो शीट डिलीट हो जाएगी। आपने अपनी शीट का रीनेम करना है, जैसे शीट 2 लिखा हुआ है, मैंने इसका नाम करना है एक्टिविटी सपोज करिए, तो मैं यहाँ पे शीट 2 में जाऊंगा, रीनेम में जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक्टिविटी। एक्टिविटी मैंने किया तो यहाँ पे एक्टिविटी के नाम से मेरी शीट ये आ गई है। इसके बाद हमारे यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शीट है इसकी मेरे को कॉपी और बनानी है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे है मूव और कॉपी शीट। यहाँ पे दो चीजें आपकी ध्यान देना आपने कि यहाँ लिखा है बिफोर शीट, ये शीट कहाँ बनानी है आपको, ये कॉपी शीट 1 बनानी है या शीट एक्टिविटी से पहले बनानी है। इसके बाद है मूव टू एंड, शीट के एंड में बनाएगा। अब क्रिएट ए कॉपी यदि मैं करूंगा तो इस शीट की एक कॉपी भी आपकी बना देगा। यहाँ पे मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए तो इसकी शीट एक्टिविटी यहाँ पे हो गई और इसकी कॉपी बन गई। सपोज कीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है मैंने यहाँ पे बाकी सारी शीट छोड़नी है और एक्टिविटी को लेके एक नई शीट बनानी है, नई शीट ओनली, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी पे जाऊंगा, यहाँ तो लिखा ना मूव सिलेक्टेड शीट टू बुक लिखा है, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा न्यू बुक। न्यू बुक पे क्लिक करो। अब ये कह रहा है क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी का मतलब है कि जो एक्टिविटी शीट है ये यहाँ पे भी रहेगी और एक नई बुक भी मेरी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट ए कॉपी, ओके मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ मेरी एक एक्टिविटी शीट आई है, बाकी मेरी शीट यहाँ पे नहीं आई है। यदि आप करते हैं कि जो मेरी शीट है यहाँ पे इसकी कॉपी मेरे को नहीं रखनी है, यहाँ से इसको हटाना है, तो फिर मैं यहीं पे आपका जाऊंगा मूव और कॉपी में, जहां मैंने लिया था न्यू बुक, अब मैं क्रिएट एक कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ओके कर रहा हूं, तो मेरी यहाँ से शीट जो है वो हट जाएगी। आप देखेंगे कि जो हमारी शीट है यहाँ पे अब मेरी एक्टिविटी शीट यहाँ पे नहीं है, यहाँ से वो मूव हो गई है, यहाँ से हमारी चली गई है। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी एक वर्कशीट जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप ये देख पा रहे हैं ये वाले ये होते हैं हमारे स्क्रॉल बार। एक हमारा स्क्रॉल बार ये है जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये होता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे हम अपनी शीट को मूव कर सकते हैं अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। इसके बाद यहाँ हमारे होते हैं डिस्प्ले सेटिंग, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आप जाओगे तो पेज लेआउट आएगा, यहाँ पे आप जाओगे तो आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से अपने जो फाइल है उसका जो साइज है वो आप कम ज्यादा कर सकते हो, जूम आप इसको कह सकते हो, यानी कि आप जूमिंग भी आपकी फाइल की कर सकते हैं। चलिए मैं नॉर्मल पे लेके चलता हूँ इसको। इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखते हैं ये वाले जो बार है हमारे सारे जो ये बटन लिखे हुए हैं ये हमारे सारे के सारे वो बटन है जो हमारे डाटा को फॉर्मेट करेंगे, जो हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी हम इन फॉर्मेटिंग को ही सभी को अप्लाई करेंगे, बट एज पर योर सिलेबस हमने मूव करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। ये हमारा मैंने बता दिया आपको, ये आपका रो हेडिंग है, ये आपका कॉलम हेडिंग है, ये जो बीच में आपकी सेल दी हुई है जो टेबल आपकी है वो हमारा कहलाता है वर्कशीट विंडो, जहां पे हम आपका शीट का काम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप आगे थोड़ा सा मूव करोगे तो यहाँ ये जो रेडी लिखा होता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और यहाँ पे हमारा होता है स्क्रॉलिंग टैब जिससे हम अपनी शीट को स्क्रॉल कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास शीट 2 ही है, मैंने यहाँ पे कई सारी शीटें ले ली आपकी, देखिए मैं बहुत सारी शीटें आपकी इंसर्ट कर रहा हूँ एक बार सिर्फ आपको ये ऑप्शन दिखाने के लिए। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये ऑप्शन दोनों है ये आपके हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब होंगे, जब मेरे पास सीटें ज्यादा हो जाएगी। आप इसको जो स्क्रॉल बार है इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे मेरी सीट कम दिखाई दे रही है मेरे को जो ये आगे वाली सीटें हैं जो नीचे दब गई है
उनको निकालना है, उनको देखना है, तो आप इस एरो को क्लिक करोगे तो हमारी सारी सीटें जो है 1 बाई 1 आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। जब लास्ट सीट आपकी आ जाएगी तो फिर ये वाला बटन हमारा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए ये हमारा बटन यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप इस बटन का यूज आप कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम वर्कशीट टैब। चलिए अब जो हमारी वर्कशीट है, इसकी जो टैब है, मान लो हमने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इन सेल को जो टैब है इनको कलर देना है। तो कलर देने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ देखेंगे टैब कलर। टैब कलर के अंदर हमारा कोई भी कलर आप दे सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दो तो वही कलर मेरी टैब के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये आ गया, यहाँ पे मेरे को कलर देना है, यहाँ पे जाऊंगा, जो कलर मेरे को देना है उस पर क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा, तो वो कलर मेरी सीट पे आ जाएगा। मीन्स हम अपनी सीट के ऊपर कलर भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऐसे ही जब हम आगे मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपके हैं इसी में, वो मैं अभी आपको करके थोड़ा सा दिखा रहा हूं। जो हमारे फंक्शंस है, तो उस फंक्शंस के अंदर हमने रीड आउट करना है, और रीड आउट के अंदर क्या है, अभी मैं नेक्स्ट जो आपका है इससे थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं। तो जब मैं मूव करूंगा, एक सेकेंड जस्ट, ये है हमारा डाटा एंट्री। आपकी जो एक्सेल शीट होती है, एक्सेल की शीट के अंदर यूजर मेनली जो यूज करता है वो अपने डाटा को एंटर करता है। और डाटा जब एंटर करता है तो डाटा हमारा डिफरेंट फॉर्म के अंदर हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, it may be in the form of text, it may be in the form of date and time, it can be a series of data like 1 2 3 4 5, it may be in the form of tables. How we can edit that data or how we can convert one form to another, तो ये हम इसके अंदर अब पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास ये डाटा आया हुआ है, ये जो मेरा डाटा है यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि ये मेरा डेट और टाइम, डेट है। यदि मैं इस डाटा को सिलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करोगे तो ये मेरा होता है फॉर्मेट सेल। अब यदि आप देखेंगे तो ये हमारा एक वो डायलॉग बॉक्स है जो हमारा मोस्टली एक्सेल को कवर कर देगा। यदि आपने ये कर लिया तो इजीली आप एक्सेल में जो है परफेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो फॉर्मेट सेल है यहाँ पे है नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ऑर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। अब मेरा जो डाटा टाइप यहाँ पे जो कैटेगरी है नंबर में, वो लिया डेट लिया हुआ है, मैंने इसको नंबर कर दिया। जब नंबर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हमारा डाटा ही चेंज हो गया। यानी कि सिर्फ हमने डाटा का जो फॉर्मेट था वो चेंज किया, चेंज करने से जो हमारा डाटा पहले डेट फॉर्म में था वो हमने जब नंबर फॉर्म में किया तो वो डाटा हमारा अनरीडेबल हो गया। तो ये जो हमारा फॉर्मेटिंग ऑफ डाटा है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर द यूजर टू यूज इट प्रॉपरली। अब इसके बाद देखिए मैंने इसको दोबारा वही मैं फॉर्मेट सेल में गया, यहाँ से फिर मैंने डेट फॉर्मेट कर दिया और मैंने ओके कर दिया। ये मेरा डाटा आ गया यहाँ पे, आप देखेंगे वही डेट हो गई। अब इसके बाद देखना क्या है आपने, अभी हमारे यहाँ पे आया हुआ है, पहले हमारी डेट है, फिर मंथ है और फिर आपका ईयर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा आए 29 जून 2020। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जिसको मेरे को चाहिए है, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में चले जाऊंगा। जब फॉर्मेट सेल में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास डेट के बहुत सारे फॉर्मेट है, ये देख पा रहे हैं। मेरे को चाहिए इस तरह का डेट, मान लो मेरे को दिन भी चाहिए है, चलो मेरे को दिन नहीं, पहले तो मेरे को सिर्फ डेट चाहिए है, तो मैं यहाँ से अपना जो है वो ले सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा गया मेरा, 29 जून 2020, 26 जून 2020। मैं चाहता हूँ कि डेट के साथ साथ मेरे को इनका जो डे है ऑन दैट पर्टिकुलर डेट पे वो भी मेरे को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, वही फॉर्मेट सेल जाऊंगा और फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से मैं चूज कर लूंगा आपका डे को भी, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे जो डे है वो भी मेरे साथ में डिस्प्ले होगा। मीन्स यू कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑन योर डेट। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो डेट मेरी जो आई हुई है 24/7/2020 आई हुई है, मैं चाहता हूं यहाँ लिखा है 24/7/20 ओनली। तो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल
और यहाँ से आप देखेंगे जैसे ये हमारा 14 3 12 है, यहाँ से आप इसको ले सकते हो। चलिए ये हो गया। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा फॉर्मेट आ जाता है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं या हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ होता है कस्टम, कस्टम में जाके आप यहाँ डिफाइन कर दो। अब मेरे को मान लो पहले चाहिए मंथ, फिर चाहिए डेट, फिर चाहिए ईयर, तो जहाँ DDMMYYY लिखा है मैं कर दूंगा पहले MM, फिर DD और फिर हमारा YYYY। 2020 मेरे को चाहिए है, तो यदि मेरे को चाहिए है सिर्फ 2020 चाहिए, 2020 नहीं चाहिए है, तो फिर मैं YY यहाँ पे रखूंगा। ये मैंने किया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास पहले मंथ आ गया, फिर डेट आ गई और फिर मेरा ईयर आ गया। मीन्स इन दिस वे यू कैन सेट द फॉर्मेट ऑफ अ डेट, यू कैन ऑल्सो सेट द सेम ऑन द नंबर ऑल्सो। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने आपका फॉर्मेट ले लिया, वही फॉर्मेट सेल में मैं जाऊंगा। फॉर्मेट में सेल में जाने के बाद सेकंड मेरा होता है नंबर। अब नंबर में ये पूछ रहा है कि मेरे को कितने डेसिमल प्लेस चाहिए। डेसिमल प्लेस मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा दूंगा। यदि मेरे को चाहिए, मान लो 2 डेसिमल मेरे को चाहिए है, तो मैंने लिया और ओके मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये डेसिमल प्लेस मेरा आ गया है 2020। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो नंबर मेरे पास ये है, इसको मैंने सपोज करिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, ये वाला इस तरह है। मैं चाहता हूं कि इसको मैंने एक सेपरेटर यूज करना है ताकि एक यूजर इसको इजीली रीड कर पाए। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा होता है, इसी में आपका लिखा हुआ है यूज 1000 सेपरेटर। यहाँ पे क्लिक कर दो और ओके करो। जब आप ओके करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सेपरेटर जो है वो आपका आ गया है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे होता है कि ये नंबर मेरे पास है, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे सम निकाल दिया इसका, इन 3 सेल का मैंने यहाँ पे सम ले लिया इन तीनों का, तो आप देखेंगे कि मेरा सम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट का फॉर्मेट यहाँ पे था। अब मैंने डेट फॉर्मेट को यहाँ से हटाया और मैंने कर दिया इसका आपका नंबर, और नंबर भी विदाउट डेसिमल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये सम जो है आपका आ गया है। लेकिन मैंने क्या किया, इन तीनों का जो नंबर फॉर्मेट था इसको मैं फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ पे जाके मैंने इसका कर दिया टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट में जब जाऊंगा और ओके करूंगा तो यहाँ पे अब यदि मैं इसका फॉर्मूला यदि अप्लाई करूंगा कोई भी, जैसे मानो ले लिया मैंने सम, ये देखिए अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है मेरा वो यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है, अब ये एज ए नंबर टेक्स्ट बिहेव कर रहा है। अब इसके ऊपर यदि सपोज करिए कि मैंने 0 लिख दिया, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ पे भी मैंने 0 लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने 0 लिख दिया। जब मैंने ये एज ए टेक्स्ट लिया है तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ये फॉर्मूला मेरा हट गया यहाँ से, यानी कि क्योंकि अब इस टेक्स्ट को इसने, इस नंबर को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लिया है और टेक्स्ट के ऊपर हमारा कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर के ऊपर, और नंबर हमारा यहाँ पे अब नहीं है। चलिए अब आगे हम चलते हैं अपनी शीट में ही। तो जब हम यहाँ पे चलेंगे तो एक हमारा डाटा इन सीरीज, वो मैंने अभी आपको दिखाया था कि डाटा हम कैसे ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो थोड़ा सा हमारा है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि जो सेल होती है आपका, उसका रेफरेंस आप कैसे दिखा सकते हैं। ये मैंने वैसे आपको बता दिया है। अब सपोज करिए कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, अब जो कर्सर मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, ये कर्सर मैंने प्लेस किया है आपके कॉलम N में, और यहाँ पे मैंने लिया है 11 आपकी रो है। मीन्स मेरा सेल का रेफरेंस क्या है, ये मेरा सेल रेफरेंस है N11। ये आप कहाँ से देख सकते हो, यदि आप अपने फॉर्मूला बार में जाओगे तो फॉर्मूला बार में आपको पता लग जाएगा कि आपका सेल का रेफरेंस क्या है। मीन्स एक्टिव सेल वेयर द पॉइंटर इज देयर, that is known as cell reference।
चलिए, इसके बाद आपका आगे है फाइंड एंड रिप्लेस डाटा इन ए वर्कशीट। देखिए किसी भी वर्कशीट के अंदर आप डाटा को रिप्लेस कैसे कर सकते हो, कैसे उस डाटा को आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कई तरीके हैं डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, और सॉरी फाइंड करने के लिए। एक तो यदि आप देखोगे आपका जो ये स्टैंडर्ड टूल बार है जिसको आप रिबन बोलते हैं, यहाँ पे हमारा लास्ट लिखा हुआ है फाइंड एंड सेलेक्ट। यहाँ पे नीचे एरो पे जाओगे तो आपके कई सारे ऑप्शन यहाँ पे है, फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू स्पेशल, फॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से यदि आप चाहते हो कि आपने किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो आप फाइंड पे क्लिक करो। यहाँ जो भी फाइंड करना, मान लो मेरे को फाइंड करना है यहाँ पे ले, तो मैंने लिखा ले और फाइंड नेक्स्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्सर जो है मेरा यहाँ पहुंच गया है। यहाँ पे 14 ये है हमारी, यानी कि एल सॉरी सी हमारी है और सी का कौन सा है 14 है, ये आपका यहाँ पे आ गया। इसके अलावा कहीं होगा, ये हमारा आगे है लेह लद्दाख, कहीं लिखा हुआ है, ये रहा यहाँ पे, ये भी आपको यही I14 पे है। इसके बाद आगे देखोगे तो आगे हमारा दो ही जगह पे यहाँ पे है। मान लो आप चाहते हो कि जहाँ लेह लिखा हुआ है वहां पे आपका जम्मू हो जाए, तो यहाँ पे लेह में मैं गया, यहाँ पे लिख दिया जम्मू। तो जब मैं यहाँ पे करूंगा रिप्लेस, ये हमारा यहाँ पे फाइंड था, ये हमारा रिप्लेस यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट करो, तो फाइंड नेक्स्ट के बाद यदि आप चाहते हो कि आपने रिप्लेस भी करना है तो यहाँ पे जाके जो सेकंड ऑप्शन हमारा है रिप्लेस का, वहां जाओ तो यहाँ पे हमारे दो बटन और ऐड हो जाएंगे, एक रिप्लेस ऑल, एक रिप्लेस। यदि आप चाहते हो कि भाई हर जगह कि जहाँ पे भी लेह लिखा हुआ है वहां पे जम्मू हो जाए, तो मैं कर दूंगा रिप्लेस ऑल। मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही करना है, एक को ही करना है, तो मैं करूंगा रिप्लेस। जब मैं रिप्लेस करूंगा तो आप देखेंगे जहां मेरा लेह लद्दाख था वहां जम्मू लद्दाख हो गया है। अब सेकंड मेरे को नेक्स्ट रिप्लेस करना है तो फिर मैं रिप्लेस करूंगा। ओके, यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ पे मैं जब जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरा रिप्लेस में करूंगा, तो यहाँ देखो ले की बजाय भी जम्मू आपका हो गया है। इन केस वी कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ डाटा, we can search any kind of data, we can replace the same with the help of only a single command, that is replace. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ वी कैन मॉडिफाई ए वर्कशीट। किसी भी शीट को मॉडिफाई कैसे करना है, किसी भी सेल को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, किसी भी रो को इंसर्ट कैसे करना है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे ये शीट है मेरी। अब ये कह रहा है हाउ वी कैन मॉडिफाई ए वर्कशीट। मॉडिफाई के लिए क्या है हमारा भाई, एक तो यहाँ से कि आप अपनी शीट का रीनेम कर सकते हो, कोई नई शीट इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, शीट को मूव कर सकते हो, उसका कोड आप देख सकते हो, प्रोटेक्ट शीट आप कर सकते हो, यानी कि शीट को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि अनऑथोराइज यूजर जो है वो उस पर काम आपका ना कर पाए। टाइप का कलर हम दे सकते हैं। आप किसी सेल को किसी वर्कशीट को आप हाइड भी कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर। अब यहाँ पे हाइड का मतलब है मैं चाहता हूं कि जो शीट 5 है मैंने इसको हाइड करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और इसको हाइड कर दूंगा। शीट मेरी 5 चली गई यहाँ से। चलिए, अभी हमने बताना है हाउ वी कैन इंसर्ट ए न्यू कॉलम। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मैंने सी और डी के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जाएंगे। 3-4 तरीके हमारे यहाँ पे है। एक तो ये है कि यदि आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं तो राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट आएगा, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा ये है आपके पास शॉर्टकट मेथड नहीं आता तो आप क्लिक करो कॉलम के ऊपर, फिर यहाँ इंसर्ट में जाओगे, यहाँ लिखा हुआ आपका क्या इंसर्ट करना, आपको इंसर्ट सेल करनी है या इंसर्ट शीट कॉलम करनी है। आपने शीट कॉलम करने हैं मान लो, तो शीट कॉलम मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, पूरा जो कॉलम है वो मेरा इंसर्ट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 9 के ऊपर, तो अब जहां मेरा शीट कॉलम दिखा रहा था वहां पे रो दिखाएगा। ये देखो इंसर्ट शीट रो, अब कॉलम मेरा यहाँ पे हाइड हो गया है, यानी कि डिसेबल हो गया। क्लिक करोगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद आप चाहते हो कि आपने पूरा रो या पूरा कॉलम इंसर्ट नहीं करना, बल्कि बीच में आपने एक सेल इंसर्ट करनी है सिर्फ, तो आप सेल पे क्लिक करोगे। पहले सेल पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट सेल, क्लिक करो। ये हमारी सेल यहाँ पे, ये पूरा रो हमारे यहाँ पे आ गया। सॉरी, अब सेल मेरे को चाहिए है यहाँ पे इंसर्ट में जब जाओगे तो इंसर्ट सेल में जाओ आप,
तो यहाँ पे जैसे ये है, राइट क्लिक करोगे, इंसर्ट, ये है मेरा टेबल कंटेंट टू द टेबल कॉलम टू द लेफ्ट टेबल को। ऐसे ही आप किसी भी सेल को जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया है, शीट 1 मेरी यहाँ पे है और यहाँ मैंने एक कॉलम लेके आना है, एक सेल लेके आनी है, तो इंसर्ट, ये देखो यहाँ पे मेरा सेल जो है वो आपका आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे हमारा होता है कि हाउ वी कैन फ्रीज द रो और कॉलम, फ्रीज ए पर्टिकुलर सेल। फ्रीज का मतलब होता है कि जब हम यहाँ से अपने डाटा को मूव करेंगे ऊपर, तो हमारा जो डाटा है, यानी कि जो ऊपर हेडिंग हमने दिया था, वो हेडिंग हमारा हाइड हो गया है। हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडिंग है वो हमारा यूं का यूं रहे यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्लिक करोगे अपने उस रो के ऊपर जिसको अपने हाइड फ्रीज करना है, उससे नीचे वाली रो पे आप अपना क्लिक कर दोगे। फिर आप व्यू मेनू में जाओगे। व्यू में जब जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक तो है हमारा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन का मतलब है जहां आपका कर्सर रखा हुआ है उससे ऊपर की सभी रो आपकी फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज टॉप रो करोगे तो सिर्फ पहला जो टॉप रो है वो आपका फ्रीज होगा, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम करोगे तो सिर्फ आपका पहला कॉलम जो है वो आपका फ्रीज होगा। तीनों मैं करके दिखा रहा हूं आपको। अब सपोज करिए कि मैंने कर्सर यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, तो मैं फ्रीज पेन करता हूँ। देखिए अब आप देखोगे तो हमारे जो रो है सिर्फ नीचे नीचे से मूव हो रही है, ऊपर वाली रो हमारी 9 तक यूं यूं रखी हुई है। अब मेरे को फ्रीज हटाना है, यहीं पे क्लिक करूंगा, फ्रीज पेन में जाऊंगा, अनफ्रीज कर दूंगा, तो ये मेरा अनफ्रीज हो गया। इसके बाद यहाँ पे जब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट रो, आपका कर्सर कहीं पे भी है, आपने सिर्फ फर्स्ट रो को फ्रीज करना है, तो आप फ्रीज पेन पे जाओगे और यहाँ करोगे फ्रीज टॉप रो, क्लिक मैंने कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो पहली रो है वो ही आपका फ्रीज हुआ है, बाकी हमारा फ्रीज नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसको हटाना है, तो मैं यहाँ पे अनफ्रीज कर दूंगा। इसके बाद जब मैं कॉलम के ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ से देखिए जब मैंने कर्सर को मूव किया तो मेरा जो पहला कॉलम है वो भी मेरा हाइड हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे को फर्स्ट जो कॉलम है उसको मेरे को फ्रीज करना है, तो आप फिर फ्रीज पेन में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम, क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करते ही हमारा जो ये है फर्स्ट कॉलम वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। यस, दिस लाइक दिस वन। ये देखिए आपका ये आपका हाइड हो गया है, सिर्फ एक हमारा कॉलम फ्रीज हुआ है, बाकी हमारे यहाँ पे फ्रीज नहीं है। चलिए अब हटाना मेरे को इनको, तो मैं यहाँ से आपका अनफ्रीज कर दूंगा, तो आपका पेन जो है वो हट जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट यदि हम आगे नेक्स्ट इसी में चलें तो आपके पास है हाउ वी कैन रिसाइज रो एंड कॉलम। हम किसी भी कॉलम को रिसाइज कैसे करेंगे, how we can resize any row, any column, any cell we can have। and second हमारा यहाँ पे है how we can change the column width। भाई कॉलम की जो width है उसको हम कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब दो तरीके, एक तो ये है कि जो मैंने शुरू में सबसे पहले बताया था कि आपने यदि किसी कॉलम की विड्थ को ज्यादा करना है तो आपका जो इंटरेक्टिंग पॉइंट है दोनों कॉलम के बीच का, वहां आपकी जो लाइन है उस पर जाके आप अपने पॉइंटर को माउस से लेफ्ट क्लिक को दबाओ और उसको आगे पीछे कर दो, तो वो आगे पीछे आप कर सकते हो। इससे हमारी जो विड्थ है वो आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपने रो की हाइट बढ़ानी है तो आपका जो रो का इंटरेक्टिंग पॉइंट है वहां पे जाएंगे। जब वहां पे जाएंगे तो हमारा जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। देखिए एरो से आपका प्लस के सिंबल में आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबाओ और इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, कितनी भी आप हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर सकते हो। चलिए आपको यहाँ से नहीं करना है तो उसके लिए सेकंड वे हमारा है, आप होम में जाएंगे। जब होम में जाओगे तो यहाँ जो हमारा फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अंदर लिखा होता है हमारा सेल साइज। इसमें रो की हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट है। ऑटो फिट का मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट उसके अंदर है उस टेक्स्ट की जितनी विड्थ आपको चाहिएगी, जितनी हाइट उसको चाहिएगी, उतनी हाइट वहां पे सेट कर देगा। ऐसे ही हमारा कॉलम विड्थ है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ है। डिफॉल्ट विड्थ जो कॉलम की है
वो आपकी यहाँ पे यदि आप जाओगे किसी भी टेबल के अंदर, तो सपोज करिए कि यहाँ पे मैं हूँ और मेरे को इसकी विड्थ दिखनी है, डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो मेरी डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो होगी 8.11 पिक्सल, 8.11 पिक्सल आप लिख सकते हो। और यदि मेरे को कॉलम की रो की जो विड्थ है वो यदि देखनी है तो वो भी मैं वहाँ पे अपनी देख सकता हूँ। चलिए, इसके बाद हमारा है कि जैसे रो हाइट आप यहाँ से करनी है, रो हाइट आपने बढ़ानी है तो क्लिक कर दो। यहाँ पे जितनी है हमारी 14.4 आपकी डिफ़ॉल्ट होगी। इसके बाद ज़्यादा आपको करनी, मान लो मेरे को चाहिए है 25 पिक्सल, तो मैं यहाँ 25 लिखूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरी जो विड्थ है वो मेरी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कितनी भी विड्थ जो है उसकी सेट कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 85, तो आप देखेंगे कि विड्थ मेरी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ इतनी ही हो जितना कि मेरा ये टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से कर दूंगा ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि रो की जो हाइट है वो ऑटो फिट कर दे, तो ये मेरी ऑटो फिट जो हाइट है वो आपकी हो जाएगी। इसके बाद ऐसे ही आप अपनी कॉलम की जो है, सपोज करिए कि मैंने ये जो कॉलम है इसकी कॉलम को मैंने ज़्यादा दे दी हुई और मैं चाहता हूँ कि इस विड्थ को मैंने ऑटो फिट करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस कॉलम पे, फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ से मैं कर दूंगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो मेरी कॉलम की जो विड्थ है वो आपकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आपका, और नेक्स्ट जब चलेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे हमारा जो था वो हम आगे कर रहे हैं। इसमें आपका है, ये हमने कर लिया, आगे है मूव और कॉपी एंटायर सेल। वो मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ कि हमने किसी भी एक सेल के कैसे हमने मूव करना है, इंसर्ट मूव और कॉपीड सेल। इसमें देखिए आप, अब सपोज करिए कि मेरे पास ये सेल है और मैं चाहता हूँ कि जो मैथमेटिकल वाला जो कॉलम है इसको मेरे को यहाँ से उठाना है और फिजिक्स से पहले लेके आना है। तो हमारे दो तरीके यहाँ पे है, एक तो ये है यहाँ पे जाओगे राइट क्लिक करके कट कर दोगे और कट करके यहाँ आप जाओगे फिजिक्स वाले कॉलम में क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक आपने करना है और यहाँ कर देना है इंसर्ट कट सेल। जब इंसर्ट कट सेल करोगे तो जो मैथमेटिक्स का हमारा जो सेल था जो हमारा यहाँ पे था वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया है। यानी कि इस तरीके से आप किसी भी अपने कॉलम के सेल को एक जगह से उठा के कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। मान लो इसको मैंने किया, यहाँ से सिर्फ मेरे को सेल उठानी है, पूरा कॉलम मेरे को नहीं चाहिए है, तो यहाँ से मैं कट करूँगा, जहाँ भी मेरे को लेके जाना है वहाँ जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिर वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी जो विड्थ है वो अपनी कहीं पे भी जाके आप सेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा ऐसे ही होता है रो के अंदर। अब जैसे मान लो ये रो जो मेरी यहाँ पे है इसको मैंने यहाँ से उठा के और टॉप में रखना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करके कट कर दूंगा। जब मैं कट करूँगा जहाँ मेरे को चाहिए है वहाँ जाके राइट क्लिक करना है और कर देना है इंसर्ट कट सेल, तो मेरी सेल ये जो नीचे थी कोहिमा वाली वो मेरी ऊपर चली जाएगी। मीन्स इस तरीके से मैं किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जगह से दूसरी जगह पर इंसर्ट कर सकता हूँ। चलिए, इसके बाद आगे हमारा है कॉपी सेल वैल्यू, सेल फॉर्मेट और फॉर्मूला ओनली। आपने कोई भी चीज कॉपी करनी है, मान लो आपकी एक सेल है, सपोज करो कि ये सेल है, इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने इस फॉर्मेट यहाँ इस फॉर्मेट के ऊपर अप्लाई करना है, सेल पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉपी, और यदि आप चाहो तो आप ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वे है कॉपी करने के। अब कॉपी मैंने यहाँ पे किया, यहाँ मैं जाऊँगा, अब मैं यहाँ पेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ मैं पेस्ट स्पेशल है यहाँ पे जाऊँगा पेस्ट, और इसमें होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वो है ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने सिर्फ फॉर्मेट चाहिए है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट, ओके कर दूँगा, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट था टेक्स्ट का वो यहाँ पे आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरे को जो है, सपोज करिए कि यहाँ पे था, जैसे मेरा इस सेल में था ये फार्मूला मेरा यहाँ अप्लाई हुआ है, इस फार्मूला को मैंने दूसरी सेल के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं या तो पेस्ट स्पेशल में यहीं से चला जाऊँगा
और पेस्ट स्पेशल में जब जाऊंगा तो पेस्ट स्पेशल हमारा यहाँ पे है और इसमें होता है फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालूंगा अपनी, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है मेरा, यानी कि जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था वो था मेरा F2/2 यहाँ पे था। अब इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया आपका पेस्ट एज फॉर्मूला। ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे 85 क्यों आया है? क्योंकि मैंने डी और ई को सम किया है। अब ई में कोई वैल्यू मेरी नहीं है तो इसलिए मेरा 85 आया है। यदि डी की बजाय मैं यहाँ पे सी कर दूंगा तो मेरा जो फॉर्मूला है वो आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट हम मान लो ये फॉर्मेट मेरे को अप्लाई करना है कहीं पे भी, तो मैं कॉपी करूंगा इसको, जहां मेरे को अप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल में जाके, यहाँ पेस्ट स्पेशल है और इसमें होता है हमारा फॉर्मेट। मैं यहाँ पे फॉर्मेट इसको ले सकता हूँ। दूसरा आपका यहीं पे है, सपोज करिए कि मेरा यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, अब यदि मैं इस वैल्यू को देखिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूं और यहाँ जाके यदि पेस्ट करूंगा, यदि मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो देखो 0 0 आ गया है। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू मेरी यहाँ पे रहे, उसमें 0 0 ना आए। तो मैं यहाँ से जो कॉपी किया है यहाँ पे मैं जाऊंगा, इसके बाद पेस्ट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ से कर दूंगा मैं वैल्यूज। वैल्यूज जब मैं करूंगा तो जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, ये आप कर सकते हो। एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इसके अंदर है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है पेस्ट स्पेशल के अंदर? ही आपका जो डाटा है उस डाटा के अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमने हेडिंग दिए हुए हैं और नीचे आपका डाटा है। मैं चाहता हूं कि मैंने उल्टा करना है कि मेरे को यहां तो कॉलम चाहिए है, हेडिंग चाहिए है और यहां डाटा चाहिए है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां मैंने क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में मैं जाऊंगा और यहां से होता है मेरा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जाके मैं ओके कर दूंगा तो अब देखिए हमारा सारा ही सीक्वेंस हो गया है। तो ये आप यहाँ पे अपना आराम से कर सकते हैं, यानी कि आप रो के डाटा को कॉलम में और कॉलम के डाटा को रो में आसानी से ले जा सकते हो। इसके बाद यदि हम आगे चलें, जैसे हमारे पास ये डाटा है, मैं चाहता हूं कि मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग लाइन जो है वो देनी है। हेडिंग लाइन के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे पहले अपनी इंसर्ट रो कर दूंगा। जब इंसर्ट रो किया है मैंने लिख दिया, मान लो रिजल्ट शीट फॉर क्लास 12। तो जब मैं देख रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक सेल के अंदर डाटा आया है। मैं चाहता हूं कि इस डाटा को मैंने इस पूरी सेल की एक सेल बनानी है और उस सेल के अंदर चाहिए है। तो मैं इसको पहले करूंगा सेलेक्ट और इसके बाद यहाँ होता है हमारा मर्ज एंड सेंटर। क्लिक कर दूंगा तो मेरा डाटा सेंटर में आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे मेरा जो है पूरी एक सेल आपकी बन जाएगी। बेसिकली हम अपने डाटा को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। चलिए, वी हैव द शॉर्टेज ऑफ टाइम। आगे आपके पास है नेक्स्ट आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, फ्रीज पेन हमने कर लिया है। पेज ब्रेक कैसे करते हैं आप और पेज का सेटअप आप कैसे करोगे? यदि आप यहीं पे जाओगे तो आपके यहाँ पे एक मेनू होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर से आप अपना कोई भी पेज का सेट, यानी कि पेज यहाँ पे मार्जिन है कितना रखना है आपने, वो आप सेट कर सकते हो। मर्जी आपकी कस्टम मार्जिन में आप दे सकते हो, कितना भी मार्जिन आप लेफ्ट से रख दो, टॉप से है, हेडर है, फुटर है, कितना भी मार्जिन आप रख सकते हो। हेडर में आपने क्या लिखना है, हेडर आपने डिफाइन करना है, कस्टम हेडर यहाँ पे कर दोगे। क्या चाहिए आपको हेडर में वो आप ले सकते हो। मान लो मेरे को यहाँ पे डेट चाहिए है तो यहाँ से हमारा लिखा हुआ है इंसर्ट डेट, क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको चाहिए भाई फाइल जहाँ पे सेव आपकी उसका पास चाहिए मेरे को, तो इंसर्ट फाइल पास। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी चाहिए, अपना नाम चाहिए मान लो, तो आप वो अपना नाम भी यहाँ पे ले सकते हो। इसके लिए आप अपना कुछ भी आप लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे JNU, ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सारी जो है हमारी ऊपर आपकी हेडर में आ गई है। ऐसे ही आप फुटर भी सेट कर सकते हो, यहाँ से कर दो कस्टम फुटर, या आप यहाँ से भी आपका कर सकते हो। मान लो मेरे को चाहिए पेज नंबर, क्लिक कर दो, पेज नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे शीट है। कई बार क्या होता है, अभी हमारे पास डाटा ज्यादा है और आप चाहते हो कि जो हमारा ये हेडिंग दिया हुआ है, ये हेडिंग सभी शीट के जो पहला पेज, जो पेज आए अगले, उन सभी पेज के ऊपर रिपीट होता रहे।
तो मैं यहाँ लिखा हुआ है रोज टू रिपीट एट टॉप, मैं क्लिक करूंगा और उस रो के ऊपर क्लिक कर दूंगा जहां मेरे को रिपीट करना है, ओके कर दूंगा। तो जब हमारे पास सीट एक से अधिक होगी तो सभी सीट के ऊपर हमारा हेडिंग आएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे है ब्रेक। ब्रेक में अब जब जाओगे तो हमारा है इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करूंगा तो मेरा डाटा जो है एक ही पेज पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये डाटा ऊपर वाला मेरे को एक पेज पे चाहिए और नीचे वाला मेरे को अलग पेज पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ब्रेक में जाके कर दूंगा इंसर्ट पेज ब्रेक, तो मेरा पेज ब्रेक जो है वो आपका हो जाएगा। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो आपका डाटा एक शीट पे सिर्फ ये आया है और अगली जो शीट है उस पे हमारा डाटा अलग आया है। तो इस तरीके से आप अपना पेज जो है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारा पेज सेटअप है। पेज सेटअप में ही मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ। यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं सीधा। यहाँ से आपके जो अपने प्रिंट करना है वो पेज हमारा पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप। इसके बाद हमारा आपके पास मान लो टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है, उसको अपने एक पेज के ऊपर सेट करना है तो कर दोगे फिट टू 1/2 1/1 जैसे आपको करना वो आप कर सकते हो। पेपर का साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स साइज हियर। यू कैन आल्सो डिफाइन द प्रिंट क्वालिटी फ्रॉम हियर। दिस इज द पेज नंबर। पेज नंबर ऑटो का मतलब है भी एक से शुरू होगा। आपने सेट करना मान लो 5 से, तो यहाँ पे 5 डाल दीजिएगा, वहाँ से आपका फर्स्ट पेज नंबर आ जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा आगे करते हैं और यही चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। पेज का ओरिएंटेशन, पेज का साइज, प्रिंट एरिया सेट करना, आपने पेज की बैकग्राउंड आपको लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हो। कोई भी बैकग्राउंड आप अपने पेज के बैकग्राउंड में रख सकते हो। सपोज करिए कि मैंने यहाँ अपना पेज था और इसकी पेज की बैकग्राउंड में मैंने अपना लोगो लेना है, तो मैंने ओके कर दिया, तो ये हमारा पेज की बैकग्राउंड में आ जाएगा। वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलिए आगे जो मेरे पास है वो हमारा हाउ वी कैन ओपन सेव एंड क्लोज। हमने सेव कर लिया, लेकिन किसी भी फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे और क्लोज कैसे करेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आप अपने फाइल में जाओगे। आपका फाइल मेनू में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा होता है सेव। सेव में जाके आपने सिर्फ वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव करना है। यहाँ से आप मान लो डेस्कटॉप पे ले रहे हो तो यहाँ से आप उसको कहीं पे भी सेव कर सकते हो। सबसे पहले पूछेगा आपसे फाइल का नाम, आप फाइल का नाम यहाँ पे दे दोगे। मान लो मैंने यहाँ दे दिया NIOS। इसके बाद पूछेगा आपसे फाइल टाइप, भाई आपने एक्सेल में सेव करना है, आपने मैक्रो में सेव करना है, आपने बाइनरी फाइल में सेव करना है, आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपका है कि मान लो आपने इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका टूल मेनू होता है। टूल मेनू में जब आप जाओगे तो यहाँ लिखा होता है जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ आप दो तरह के पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। एक तो होता है हमारा पासवर्ड टू ओपन। पासवर्ड टू ओपन में मान लो पासवर्ड दे दिया मैंने। एक होता है पासवर्ड टू मॉडिफाई, मैंने ओके कर दिया। जब आप इसको सेव करोगे तो दोबारा आपसे पासवर्ड पूछेगा, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और इसके बाद मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो ये फाइल मेरी तब तक ओपन नहीं होगी। अब मेरी फाइल हो गई सेव NIOS के नाम से। मैंने फाइल को क्लोज करना है तो वो फाइल मैं यहाँ पे क्लोज आपकी कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर दीजिएगा। दोबारा फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे आप ओपन में जाएंगे, जो फाइल आपकी है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल ओपन होगी, यदि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। अब मैंने पासवर्ड यहाँ पे दिया था तो इसलिए इसके अंदर आपका पासवर्ड आया हुआ है। मैं सिर्फ इस पासवर्ड को अपना पासवर्ड एंटर करूंगा, यदि पासवर्ड मेरे पास होगा तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे दो पासवर्ड मैंने दिए थे, एक पासवर्ड टू ओपन, एक पासवर्ड टू एक्सेस। अब एक्सेस मान लो मैं नहीं करता हूँ तो मेरा जो यूजर है वो सिर्फ इस फाइल को रीड ओनली ले सकता है, इसमें राइटिंग वो नहीं कर पाएगा। यदि मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ दोनों, तो फिर यूजर जो है अपनी फाइल को दोनों मोड में यूज कर सकता है। तो आज टाइम हमारा हो गया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा नेक्स्ट सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन में हमारा बहुत कुछ बाकी है अभी एक्सेल के अंदर, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हमने सीखा है हाउ वी कैन
create basic operations on Microsoft Excel, how we can use different functions, how we can format the text, and how we can do any kind of formatting on a cell, on a row, or on any worksheet. So thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.